آپ کے سامنے موجود ہے۔ پاکستان میں مختلف اوقات میں بننے والے سیاسی اتحاد کبھی تمام سیاسی جماعتوں کے مشتمل اتحاد بنے اور بعض مرتبہ خالصتاً مذہبی جماعتوں کا آپس میں اتحاد ہوا۔ سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہوتا تھا تو مذہبی جماعتیں ان سے دور ہوتی تھی، مذہبی جماعتوں کا اتحاد ہوتا تھا تو سیاسی جماعتیں ان سے دور ہوا کرتی تھی۔ گزشتہ ادوار جو گزرے ملک میں آپ حضرات کے سامنے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس کے اوپر بڑا غور و فکر کیا۔ مختلف اوقات میں مختلف جماعتوں کے ذمہ داران جن میں مذہبی جماعتوں کے قائدین اور سیاسی جماعتوں کے قائدین تھے۔ بہت ساری مشاورتوں کے بعد طے پایا کہ ایک ایسا سیاسی اتحاد جس میں سیاسی جماعتیں بھی ہوں اور مذہبی جماعتیں بھی ہوں، یہ دونوں مل کر کے آنے والے حالات میں الیکشن لڑے گی اور ایک فارم ہوگا اور ہم جو حالات ملک میں گزرے ہوئے تھے ان کا مقابلہ یہ اتحاد کرے گا۔ آپ اوپر نام لے کر ہوا دیکھ رہے ہیں قومی یکجہتی بہادر نگر ہارون آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی مصروفیات ترک کر کے ہمارے جنگ میں تشریف لائے۔ میں انہیں کہنا چاہوں گا جنگ کے عوام کیونکہ شہیدوں سے محبت کرتے ہیں، آپ سے بھی ان کی محبت ہوگی۔ میں انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے، آپ کی محبتوں سے، جنگ کے عوام کے ووٹوں سے 8 فروری کو کامیاب ہو کر کے جہاں میں آپ کو خوشخبری سناؤں گا وہیں پر آنے والے دور میں پاکستان میں ہمارا سفر ایک طرح ہوگا۔ ہم ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کے چلیں گے، جہاں اسلام کی حقانیت کے لیے دفاع اصحاب رسول و اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہماری کوششیں ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑے دنوں سے پروگرام بن رہا تھا کہ جنگ آ کر ملاقات بھی کریں اور الیکشن کے سلسلے میں بات بھی کریں۔ یہ سلسلہ جس کی آپ آج دیکھ رہے ہیں قومی یکجہتی اتحاد، یہ کوئی ایک رات میں نہیں بن گیا، اس کے لیے ہماری مشاورت جو ہے تقریباً 3-4 ماہ سے جاری تھی اور مقصد ایک ہی تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگوں نے یہ دیکھا ہے، پاکستان کے عوام نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو نظریاتی سیاست ہوتی تھی، نظریاتی سیاست یعنی کہ جس مقصد کے لیے پاکستان کو بنایا گیا اس کو آگے لے کر چلنے کی سیاست، کیونکہ جب تک ہم اپنے ملک کو انہی نظریات پر، اس کی بنیادیں دین پر نہیں رکھیں گے، وہ عمارت جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ 2006 میں جب مساق جمہوریت چارٹر اور ڈیموکریسی ہوا، اس دن پاکستان میں عوام کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب پاکستان کے اندر نظریاتی سیاست کو دفن کر دیا گیا اور مفادات کی سیاست کا آغاز ہے، کیونکہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول یعنی مغرب اور مشرق، یعنی سورج جو ہے وہ کبھی مغرب سے نکلتا ہے کبھی مشرق سے، کہ وہ لوگ جو کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہوتے۔ اور پھر آپ لوگوں نے پچھلے 16 ماہ یہ دیکھا کہ تقریباً 16 جماعتیں اکٹھی ہو گئی اور کسی ایک جماعت کا
منشور، منزل، سیاست، نظریہ مجھے بتا دیں گے. اگر ملتا ہو تو میں کہوں گا جی ہم بھی آپ کی بیعت کریں. کیا ملتا تھا؟ صرف مفادات ملتے ہیں. عوام کو جس مشکل میں انہوں نے ڈال دیا، پاکستان کو جس مشکل میں ڈال دیا، میرا خیال ہے پچھلے 50 سال میں پاکستان اتنی مشکل سے نہیں گزرا. عوام کے کندھوں پہ جو بوجھ، مہنگائی، بے روزگاری، پاکستان کو ایک کشکول اٹھانے والا ملک بنا دیا. پاکستان کی خارجہ پالیسی ختم کر دی. ہمارے جو دوست تھے وہ ہمارے مخالف ہو گئے، اور جو ہمارے دشمن تھے تو ہم سے ویسے ہی ہمارے مخالف تھے. تو اس سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں نظریاتی سیاست ہونی چاہیے. اور یہ اتحاد جو بنا ہے یہ اس لیے نہیں بنا کہ ہم صرف الیکشن تک جائیں گے اور 8 فروری کو سب ایک دوسرے کو سلام کر کے تو گھروں گھر چلے جائیں گے. اس کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. اور آج اللہ کے فضل اور مولانا صاحب کا اس میں بڑا اہم کردار تھا. اعلان تو آج کر رہے ہیں، ان کو شامل میں اپنے اس لیے آیا ہوں کہ یہ اعلان کروں کہ مولانا لدھیانوی صاحب ہمارے اس اتحاد کا سب سے مضبوط پلر ہے. اور مجھے یاد ہے، میں ابھی راستے میں ان کو بتا رہا تھا کہ مولانا اعظم طارق کی اور میری جو ہے وہ کرسی ساتھ ساتھ ہوا کرتی تھی اسمبلی کے اندر، اور ہمارا تعلق بھی بڑا گہرا تھا باقی علماء کرام کے ساتھ. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں. مولانا صاحب نے ذکر کیا، میں نے کہا کہ ہمارے والد نے وہ لے کر آؤ بیانہ. میں نے کہا میں بیانہ کس چیز کا دوں، میری تو کوئی زمین ہی نہیں. وہ حیران ہو گیا دیکھ کر لے کر. وہ پیچھے ادھر ادھر گھوم کے دیکھا، کہا آپ کی زمین کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی زمین نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی وائف کی ہوگی. میں نے کہا اس کی بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا بچوں کی ہوگی. میں نے کہا وہ ان کی بھی کوئی نہیں ہے. کہتا اچھا تحصیلدار ادھر آؤ، جاؤ NOC بنا کے لاؤ اس کے لیے بیان ہے. تو میں نے کہا میرا تو گھر بھی ادھر کوئی نہیں ہے، لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے مجھے بیٹھ. میرے والد صاحب نے الحمدللہ ہمارے لیے جو چیز چھوڑی ہے نا، جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت ایک ترازو میں ڈال دیں اور ان کی محبت ایک پلڑے میں ڈال دیں تو وہ بھاری ہو جائے گا. وہ ہے علماء اور مشائخ کی جو محبت ہے. اس سے آگے ہمیں کوئی چیز چاہیے نہیں. اور میں کوئی 6 مرتبہ تو قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں، وزیر رہ چکا ہوں. 11 سال بڑے قریب سے اس ملک کے بلکہ دنیا کی سیاست کو بھی دیکھ لیا ہے، اور کوئی ایسا سربراہ نہیں تھا دنیا کا جس سے ہم ملے نہیں ہوئے. تو مجھے اب یہ شوق نہیں ہے کہ میں MLA بن جاؤں اور وزیر بن جاؤں. مجھے یہ شوق ہے کہ ہم پاکستان کے قبلے کو سیدھا کریں اور اس ملک میں امن قائم کریں، اس ملک کے وقار کو بلند کریں، اور اس ملک کا قبلہ جو ہے اس کو درست کریں. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہر قربانی ہم دینے کے لیے تیار. آج اللہ کے فضل و کرم سے اٹک سے لے کر اور رحیم یار خان تک ہر شہر، ہر مطلب علاقے میں ہمارے مولانا صاحب تو الیکشن لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی اسمبلی میں ہماری سیٹیں بھی کٹی ہوں گی. مولانا صاحب کو آپ کے سامنے دعا بنا کے مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ مولانا صاحب کامیاب انشاءاللہ، اور ہماری سیٹیں بھی کٹھی ہوں گی انشاءاللہ اسمبلی کے اندر. کیونکہ ہم نے بیٹھنا ہے وہاں بیٹھنا ہے جہاں پر مفاد نہیں ہوگا. ہم نے وہاں پہ بیٹھنا ہے جہاں پاکستان کا مفاد ہوگا. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اٹک سے لے کر رحیم یار خان وہ لے کر آؤ بیانہ. میں نے کہا میں بیانہ کس چیز کا دوں، میری تو کوئی زمین ہی نہیں. وہ حیران ہو گیا دیکھ کر لے کر. وہ پیچھے ادھر ادھر گھوم کے دیکھا، کہا آپ کی زمین کوئی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی زمین نہیں ہے. انہوں نے کہا آپ کی وائف کی ہوگی. میں نے کہا اس کی بھی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا بچوں کی ہوگی. میں نے کہا وہ ان کی بھی کوئی نہیں ہے. کہتا اچھا تحصیلدار ادھر آؤ، جاؤ NOC بنا کے لاؤ اس کے لیے بیان ہے. تو میں نے کہا میرا تو گھر بھی ادھر کوئی نہیں ہے، لوگوں کی محبت ہے جس کی وجہ سے مجھے بیٹھ. میرے والد صاحب نے الحمدللہ ہمارے لیے جو چیز چھوڑی ہے نا، جس کا ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی دولت ایک ترازو میں ڈال دیں اور ان کی محبت ایک پلڑے میں ڈال دیں تو وہ بھاری ہو جائے گا. وہ ہے علماء اور مشائخ کی جو محبت ہے. اس سے آگے ہمیں کوئی چیز چاہیے نہیں. اور میں کوئی 6 مرتبہ تو قومی اسمبلی کا ممبر رہ چکا ہوں، وزیر رہ چکا ہوں. 11 سال بڑے قریب سے اس ملک کے بلکہ دنیا کی سیاست کو بھی دیکھ لیا ہے، اور کوئی ایسا سربراہ نہیں تھا دنیا کا جس سے ہم ملے نہیں ہوئے. تو مجھے اب یہ شوق نہیں ہے کہ میں MLA بن جاؤں اور وزیر بن جاؤں.
मुझे ये शौक है कि हम पाकिस्तान के किबले को सीधा करें और इस मुल्क में अमन कायम करें, इस मुल्क के वकार को बुलंद करें और इस मुल्क का किबला जो है उसको दुरुस्त करें, और उसके लिए इंशाल्लाह हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार। आज अल्लाह के फजल करम से अटक से लेकर और रहीम यार खान तक हर शहर, हर मतलब इलाके में हमारे मौलाना साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली असेंबली में हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी। मौलाना साहब को आपके सामने दुआ बना के मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह मौलाना साहब कामयाब इंशाल्लाह, और हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी इंशाल्लाह असेंबली के अंदर, क्योंकि हमने बैठना है वहाँ बैठना है जहाँ पर मुफाद नहीं होगा, हमने वहाँ पे बैठना है जहाँ पाकिस्तान का मुफाद होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अटक से लेकर इंगर खान वो लेकर आओ बयाना। मैंने कहा मैं बयाना किस चीज़ का दूँ, मेरी तो कोई ज़मीन ही नहीं। वो हैरान हो गया देख कर लेकर, वो पीछे इधर उधर घूम के देखा, उन्होंने कहा आपकी ज़मीन कोई नहीं है। मैंने कहा कोई ज़मीन नहीं है। उन्होंने कहा आपकी वाइफ की होगी। मैं कहा उसकी भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा बच्चों की होगी। मैं कहा वो उनकी भी कोई नहीं है। कहता अच्छा तहसीलदार इधर आओ, जाओ NOC बना के लाओ इसके लिए बयान। तो मैंने कहा मेरा तो घर भी इधर कोई नहीं है, लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे बैठ। तो मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो चीज़ छोड़ी है ना, जिसका हम समझते हैं कि अगर सारी दुनिया की दौलत एक तराजू में डाल दें और इनकी मोहब्बत एक पल्ले में डाल दें तो वो भारी हो जाएगा। वो है उलमा और मशाइख की जो मोहब्बत है। इससे आगे हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं। और मैं कुछ 6 मरतबा तो कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, वज़ीर रह चुका हूँ। 11 साल बड़े करीब से इस मुल्क के बल्कि दुनिया की सियासत को भी देख लिया है, और कोई ऐसा सरबराह नहीं था दुनिया का जिससे हम मिले नहीं हुए। तो मुझे अब ये शौक़ नहीं है कि मैं MNA बन जाऊँ और वज़ीर बन जाऊँ। मुझे ये शौक़ है कि हम पाकिस्तान के किबले को सीधा करें और इस मुल्क में अमन कायम करें, इस मुल्क के वकार को बुलंद करें और इस मुल्क का किबला जो है उसको दुरुस्त करें, और उसके लिए इंशाल्लाह हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार। आज अल्लाह के फजल करम से अटक से लेकर और रहीम यार खान तक हर शहर, हर मतलब इलाके में हमारे मौलाना साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली असेंबली में हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी। मौलाना साहब को आपके सामने दुआ बना के मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह मौलाना साहब कामयाब इंशाल्लाह, और हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी इंशाल्लाह असेंबली के अंदर, क्योंकि हमने बैठना है वहाँ बैठना है जहाँ पर मुफाद नहीं होगा, हमने वहाँ पे बैठना है जहाँ पाकिस्तान का मुफाद होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अटक से लेकर इंगर खान वो लेकर आओ बयाना। मैंने कहा मैं बयाना किस चीज़ का दूँ, मेरी तो कोई ज़मीन ही नहीं। वो हैरान हो गया देख कर लेकर, वो पीछे इधर उधर घूम के देखा, उन्होंने कहा आपकी ज़मीन कोई नहीं है। मैं कहा कोई ज़मीन नहीं है। उन्होंने कहा आपकी वाइफ की होगी। मैं कहा उसकी भी कोई नहीं है। उन्होंने कहा बच्चों की होगी। मैं कहा वो उनकी भी कोई नहीं है। कहता अच्छा तहसीलदार इधर आओ, जाओ NOC बना के लाओ इसके लिए बयान। तो मैंने कहा मेरा तो घर भी इधर कोई नहीं है, लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे बैठ। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो चीज़ छोड़ी है ना, जिसका हम समझते हैं कि अगर सारी दुनिया की दौलत एक तराजू में डाल दें और इनकी मोहब्बत एक पल्ले में डाल दें तो वो भारी हो जाएगा। वो है उलमा और मशाइख की जो मोहब्बत है। इससे आगे हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं। और मैं कुछ 6 मरतबा तो कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, वज़ीर रह चुका हूँ। 11 साल बड़े करीब से इस मुल्क के बल्कि दुनिया की सियासत को भी देख लिया है, और कोई ऐसा सरबराह नहीं था दुनिया का जिससे हम मिले नहीं हुए। तो मुझे अब ये शौक़ नहीं है कि मैं MNA बन जाऊँ और वज़ीर बन जाऊँ। मुझे ये शौक़ है कि हम पाकिस्तान के किबले को सीधा करें और इस मुल्क में अमन कायम करें, इस मुल्क के वकार को बुलंद करें और इस मुल्क का किबला जो है उसको दुरुस्त करें, और उसके लिए इंशाल्लाह हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार। आज अल्लाह के फजल करम से अटक से लेकर और रहीम यार खान तक हर शहर, हर मतलब इलाके में हमारे मौलाना साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली असेंबली में हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी। मौलाना साहब को आपके सामने
दुआ बना के मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह मौलाना साहब कामयाब इंशाल्लाह, और हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी इंशाल्लाह असेंबली के अंदर, क्योंकि हमने बैठना है वहाँ बैठना है जहाँ पर मुफाद नहीं होगा, हमने वहाँ पे बैठना है जहाँ पाकिस्तान का मुफाद होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अटक से लेकर इमरान खान हमारे लिए ना दौलत छोड़ी है, ना फैक्ट्रियाँ छोड़ी है, ना ज़मीनें छोड़ी है। मतलब जिस हल्के से मैं इलेक्शन लड़ता हूँ ना, उस दिन ये अब ज़मीनी बात करने लगा हूँ, उस दिन वो जब मैं रिटर्निंग अफसर के वो लेकर आओ बयाना, मैंने कहा मैं बयाना किस चीज़ का दूँ, मेरी तो कोई ज़मीन ही नहीं। वो हैरान हो गया देख कर लेकर, वो पीछे इधर उधर घूम के देखा, मैंने कहा आपकी ज़मीन कोई नहीं है, मैंने कहा कोई ज़मीन नहीं है। मैंने कहा आपकी वाइफ की होगी, मैंने कहा उसकी भी कोई नहीं है। मैंने कहा बच्चों की होगी, मैंने कहा वो उनकी भी कोई नहीं है। कहता अच्छा तहसीलदार इधर आओ, जाओ NOC बना के लाओ इसके लिए बयान। तो मैंने कहा मेरा तो घर भी इधर कोई नहीं है, लोगों की मोहब्बत है जिसकी वजह से मुझे बैठ। मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो चीज़ छोड़ी है ना, जिसका हम समझते हैं कि अगर सारी दुनिया की दौलत एक तराजू में डाल दें और इनकी मोहब्बत एक पल्ले में डाल दें तो वो भारी हो जाएगा, वो है उलमा और मशाइख की जो मोहब्बत है। इससे आगे हमें कोई चीज़ चाहिए नहीं। और मैं कुछ 6 मरतबा तो कौमी असम्बली का मेंबर रह चुका हूँ, वज़ीर रह चुका हूँ, 11 साल बड़े करीब से इस मुल्क के बल्कि दुनिया की सियासत को भी देख लिया है, और कोई ऐसा सरबराह नहीं था दुनिया का जिससे हम मिले नहीं हुए। तो मुझे अब ये शौक़ नहीं है कि मैंने बन जाऊँ और वज़ीर बन जाऊँ, मुझे ये शौक़ है कि हम पाकिस्तान के किबले को सीधा करें और इस मुल्क में अमन कायम करें, इस मुल्क के वक़ार को बुलंद करें और इस मुल्क का किबला जो है उसको दुरुस्त करें, और उसके लिए इंशाल्लाह हर कुर्बानी हम देने के लिए तैयार। आज अल्लाह के फजल करम से अटक से लेकर और रहीमिया खान तक हर शहर, हर मतलब इलाके में हमारे मौलाना साहब तो इलेक्शन लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अगली असेंबली में हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी। मौलाना साहब को आपके सामने दुआ बना के मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह मौलाना साहब कामयाब इंशाल्लाह, और हमारी सीटें भी इकट्ठी होंगी इंशाल्लाह असेंबली के अंदर, क्योंकि हमने बैठना है वहाँ बैठना है जहाँ पर मुफाद नहीं होगा, हमने वहाँ पे बैठना है जहाँ पाकिस्तान का मुफाद होगा। तो मैं ये बता रहा था कि अटक से लेकर इमरान खान MPA खड़े हुए हैं, जो कि वज़ीर रह चुके हैं, मुशीर रह चुके हैं, MNA रह चुके हैं और पार्लियामेंट में मुतअद्दिद मरतबा जा चुके हैं। उनको कोई जगह नहीं मिल रही थी जाने के लिए, वो बैठे हुए थे आराम से कि हम कहाँ किधर हम जाएं। तो उन्होंने देखा एक तरफ जाएं तो आवाम नहीं पूछती हमें। मतलब आज देख लो कि मैंने ये देखा, अब मैं उसका जिक्र चलो नहीं करता क्योंकि सारे हमारे चाहने वाले हमारे दोस्त हैं, कि लियाकत बाग में भी कल परसों जलसा था 2 जमातों का, बड़ी जमात, लियाकत बाग में 3000 लोग नहीं इकट्ठे होते। मुझे दुख हुआ ये देख, वो लोग जो कि इस मुल्क में बड़ी बड़ी एक्सीडेंट लेकर आ रहे हैं, उनका ये हाल है। क्या चाहिए? जब मैं अभी थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे इस इत्तेहाद के अंदर, ये तो मैंने बताया कि हमारे 36 के करीब लोग लड़ रहे हैं। बावल नगर से 9 सीटें हम लड़ रहे हैं, दोनों हलकों से मेरे अपने हेलीकॉप्टर के निशान पर है, मौलाना साहब का तो इसी निशान है। 3 हमारे अलायंस के लोग वहाँ से लड़ रहे हैं, अटक से भी लड़ रहे हैं और खानेवाल से भी लड़ रहे हैं, रहीमिया खान से भी लड़ रहे हैं और बावलपुर से भी लड़ रहे हैं। यानी ये 36 के करीब लोग बन रहे हैं और मज़ीद लोग शामिल हो रहे हैं हमारे साथ, जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे अब हमारे साथ वो शामिल हो रहे हैं। इसमें हमारे इत्तेहाद के अंदर इन लोगों के अलावा ये एक रिलीजियस मॉडरेट इत्तेहाद है, इत्तेदाल पसंद जिसको कहते हैं। ये अल्लाह ताला ने भी कहा कि ऐसा रास्ता जो इत्तेदाल का रास्ता हो वो आप लेकर आगे चलें, तो हमने ये इत्तेदाल का रास्ता बनाया। हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना साहब की जमात के अलावा मौलाना समीउल हक साहब की जमात है, JUIS मरकज़ी मुस्लिम लीग है हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके कैंडिडेट पता भी यहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे, वो आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। ये हाँ जी, मंशा ग्रुप के हैं, मंशा गुजर साहब,
तो वो आज मौलाना साहब के हक में दस्तबरदार होंगे क्योंकि वो हमारी 2002 का इलेक्शन था, उसके बाद के इलेक्शनों में एक सीट यानी मेरा वोट डला तो हुकूमत बनी। मैं कहता हूँ मेरा वोट डला, शेख रशीद कहता है मेरा डला, हामिद नाज़िर चट्टा कहता है मेरा डला, और तैयारुल कादरी साहब कहते थे मेरा डला। यानी हम 4 लोग थे, ग्रुप के अंदर थे, तो हमने जब जाके वोट दिया तो 172 सीटें, वरना 172 सीटें नहीं होती। एक सीट से बनी हुकूमत और वो हमारा वोट था। तो ये जो है अभी हुकूमत, इसमें भी हमारी कौमी यकजहती इत्तेहाद की सारी सीटें डलेंगी तो हुकूमत बनेगी, वरना सब आकर मौलाना साहब भी मिलते कर रहे होंगे कि हमारे साथ। मैं इंशाल्लाह कबल इलेक्शन मौलाना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप लोगों ने मेहनत नहीं छोड़नी, बहुत बड़े बड़े हल्के हैं, टाइम बड़ा कम था, जहाँ पे मौलाना साहब ना पहुँच सके, हर कारकुन वो समझ लो कि मैं मौलाना साहब का मैं कैंडिडेट हूँ और ये निशान मेरा निशान है, स्त्री का निशान, और हर जगह घर घर इसको पहुँचाएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे मौलाना साहब। इजाज़ साहब ये फरमाएं कि क्या इलेक्शन जो हो रहे हैं आप उसको फेर देख रहे हैं? कई पार्टियां, जो एक पार्टी तो कह रही है ना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही, तो वही इलेक्शन के बाद कोशिश करेंगे मीडियम कोई जमातें इकट्ठी होंगी। ये जो नूरा कुश्ती है ये सिर्फ ये कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, पहली बात ये। दूसरी बात आपने की है जी, आप काफ़ी हो गए जी सर, सफर भी बड़ा है। मजहबी लोग आपके ज्यादा करीब हैं, क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी टच किया आ जाए आपके साथ? मौलाना फजलुर रहमान साहब की मैं बड़ी दिल करता हूँ, दिल की गहराइयों से, क्योंकि मैं उनके साथ कश्मीर कमेटी में रहा हूँ और बड़ा मुझ पर बात करते रहे। सवाल इज्जत करने का नहीं है, सवाल आपके साथ चलने का है। साथ अभी तक उनसे मेरा राब्ता नहीं हुआ, मैं कोशिश करूँगा उनसे भी बात। सर थैंक यू वेरी मच। नौजवान ने पाकिस्तान हमारे साथ है, अब्दुल्ला गुल साहब, उनका भी यहाँ से कैंडिडेट एक खड़े हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह मौलाना साहब के हक में दस्तबरदार। तो ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे इत्तेहाद के लोग हैं वो हम अल्लाह के फजल करम से एक दूसरे का बाजू बनेंगे, एक दूसरे के खिलाफ लोग नहीं खड़े करेंगे। इसमें मरकजी मुस्लिम लीग ने बड़ा किरदार अदा किया। जहाँ जहाँ हमने उनकी रिक्वेस्ट की है, हालांकि उनके लोग जो है वो आगे जा चुके हैं इलेक्शन के अंदर और पैसा भी कर चुके हैं, पोस्टर भी उनके बहुत लगे हुए हैं, बैनर भी लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही हमने रिक्वेस्ट की उनको फौरी तौर पर उन्होंने हमारे साथ किया। और बहुत से इलाकों के अंदर जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत थी, पाकिस्तान अवामी तहरीक में उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और 3-4 और साथियों ने भी रिक्वेस्ट किया कि उनसे मैं जिक्र करूं, तो मैंने जब उन्हें बताया तो उन्होंने वहाँ से अपने अपने कैंडिडेट जो है जहाँ पे ड्रॉप किया, और जहाँ उनके कैंडिडेट नहीं है उन्होंने अपनी तंजीम को कहा कि इनकी सपोर्ट करें इस कौमी यकजहती इत्तेहाद की। तो ये इंशाल्लाह 8 फरवरी हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल उससे बहुत आगे है इंशाल्लाह। इस इत्तेहाद को हम आगे लेकर चलेंगे। और ये भी आपको बता दूँ कि तासुर ये दिया जा रहा है कि कोई एक जमात जो है वो हुकूमत बनाएगी। मैं उस तासुर को ज़ाहिर नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत तो वही बनाएगा जो मैदान मारेगा। कुछ लोग अपने जोर पे मैदान मार रहे हैं, कुछ लोग कई और घोड़ों पे चढ़ के मैदान मारने की कोशिश कर रहे हैं। घोड़ों पे उनको बिठाया गया है, घोड़े को पानी तक लाया गया, लेकिन घोड़ा पानी पीने को तैयार नहीं। घोड़े को आप अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू कैन टेक द हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। घोड़े को ले जाए पिला नहीं सकते। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूँगा कि कौमी यकजहती इत्तेहाद के जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो भी हुकूमत बनाएगा, ये ना समझना कि मौलाना साहब इलेक्शन लड़ेंगे अपोजिशन में बैठ जाएंगे। जो भी हुकूमत बनाएगा इंशाल्लाह कौमी यकजहती इत्तेहाद का तावन होगा तो बनाएगा, अगर तावन नहीं होगा आपको बता रहे हो इंशाल्लाह हमारी इतनी सीटें होंगी, क्योंकि बाकी तो पूरी खिचड़ी पक रही है इंशाल्लाह। तो हमारी सियासी जमातें तो अब आपने देख लिया ना हालात क्या बने हुए, वो तो
जलसे कर रहे हैं तो आवाम इकट्ठी होती है, वो बड़ी मुश्किल से घरों से बाहर निकलने की उन्होंने कोशिश की है, चंद एक हल्कों में गए हैं। और ये मेरे भी आना था, उन्होंने परसों आ रहे हैं आपकी तरफ भी। कल आ रहे हैं, लेकिन अभी सुना कि थोड़ा डिले हो गया। यार साहब मेरा सवाल ये है कि जिस घोड़े की आपने नहीं उस घोड़े की बात वो लाइंस जो है, अब वो दोबारा कोई राब्ते नहीं हुए? माजी में आप उनके एहतियाती रहे हैं, उनके साथ लड़के इलेक्शन आए। देखिए मेरे वाले साहब के ज़माने में अल्लाह ना करे आइंदा भी बने, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई ना बने, कौन किसका था। उस ज़माने में एक चीफ मिनिस्टर बना था जो 88 के तक जो जन दौलत शहीद जब तक जिंदा थे, उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा बने, ठीक है ना। ये तो उनकी दुआ थी, शायद लगती हो सोच। एजाज साहब ये फरमाइए, उनकी दुआ थी या गेट नंबर 4 की दुआ थी? एक ही बात है, एजाज साहब ये फरमाइए भी आज़ाद उम्मीदवार अक्सरियत में आ रहे हैं, ये दोनों बड़ी जमातें आज़ाद उम्मीदवारों से उम्मीद लगाए बैठे, क्या आप खरीदो फरोख्ती मंडी लगते देख रहे हैं? देखिए ये पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ था ना, बड़ा अफसोसनाक हुआ था। जो रिजीम चेंज हुआ था ना, उस तरह नहीं होना चाहिए था। उस वक्त मंडी लगी थी, अब उसी की वजह से इनको परेशानी हो रही है। ऐसी ऐसी जमातें इत्तेहाद बने, बड़े बड़े सरमायादार थे उसके अंदर, आखिर में जाके फिर 5-5 सीटों पर उनको इत्तेफाक करना पड़ा। और लोगों को उन्होंने बजाय इसके कि उनकी कोई मजबूत बुनियाद रखते, उन बेचारों में से अक्सरियत जो है इलेक्शन यहाँ से मेरा आपसे सवाल है, पंजाब असेंबली देख लें, अपना फरूक हबीब साहब देख लें, जो उनके इंफॉर्मेशन के सेक्रेटरी होते थे, मिनिस्टर थे। बहुत से ऐसे नाम मैं आपको बता सकता हूँ जिनको वहाँ पर इकट्ठा किया और उनको इलेक्शन। यहाँ से मेरा आपसे सवाल है कोशिश कि करेंगे उन आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने के बाद कौमी यकजहती इत्तेहाद में लाने की। यहाँ से मेरा आपसे सवाल है यानी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ? या साहब हमारे पास जहाज नहीं है उठाने के लिए। सर, अगर पीपल पार्टी की हुकूमत मेजोरिटी में आ जाती है, उनकी सीटें ज़्यादा हो जाती हैं, तो उसके बावजूद अगर आपकी ज़रूरत पड़ती है तो क्या आप पीपल पार्टी के साथ इलाक़ कर लेंगे? मेरी जरूरत उनको कभी भी नहीं पड़ी। ये आप कह रहे हैं कि आपकी बगैर कोई हुकूमत नहीं बनेगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप। इनका सवाल ये है जी कि क्या आप पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद कर सकते हैं? पीपल पार्टी से देखें, हमने जिस वक्त इत्तेहाद तो नहीं, हमारा नजरियाती इख्तिलाफ है, ज़ाती कोई भी नहीं। ये आप उनसे उनके को चेयरमैन से पूछे, चेयरमैन से तो मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उनके को चेयरमैन से अगर आप पूछें मेरे बारे में तो अच्छे अल्फाज में जिक्र करेगा। मैं वो कहानियाँ नहीं सुनाना चाहता यहाँ पे, हमारी किसी से नहीं। जब वो धरने के दौरान उस वक्त हम उनके साथ खड़े हुए थे, मैं कमेटी में था, उस कमेटी में पीपल पार्टी भी थी। कभी हम जा रहे थे तारुक गांधी साहब के पास, कभी हम कंटेनर पे जा रहे थे मनाने के लिए। उस दौरान पीपल पार्टी वाले भी थे उसके अंदर कमेटी में, तो हमने कई मरतबा आपस में बैठ के खाने भी एक दूसरे घर में खाए और बातचीत भी की। तो हमारी ज़ाती दुश्मनी होनी नहीं चाहिए सियासत में। एजाज साहब ये फरमाइए कि रजीम चेंज के वक्त इकट्ठा होने वाले शिकारी अब जो इलेक्शन का मौका है, अब क्यों अलग अलग हो गए? वो सिर्फ ड्रामा है।